Dear students, welcome to my YouTube channel and let us continue our discussion on waves and optics. We have just started waves, basically simple harmonic motion, and in the last class we have discussed about restoring force. Okay, derivation of restoring force by using Taylor series expansion. So आज हम काइनेमेटिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हम पोजीशन मिल जाएगा, पोजीशन से वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके, सो ये जो है ये काइनेमेटिक्स है, उससे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब हम निकल सकते हैं, है ना। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट थिंग दैट इज टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जस्ट काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। यू कैन राइट, सो यू नो अबाउट काइनेमेटिक्स। जैसे हम वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ते हैं, मोशन स्टार्ट लाइन में, कि पार्टिकल का पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो सब होता है ये काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो द वेरिएबल्स रिलेटेड टू मोशन एक्चुअली, सो ये होता है काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। सो इसके लिए फर्स्ट जो जरूरत है वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्टिकल का मोशन का, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये सब निकाल सकते हैं। तो व्हाट वी हैव इन आवर हैंड इन द लास्ट क्लास दैट वी हैव डिराइव्ड, है ना, and that is basically was f is equal to minus k into q minus q naught, where q is the generalized coordinate and q naught is the stable equilibrium position, and f is the generalized force, you can say in this respect. So if we talk about f is mass into acceleration, and we can write in this way that m into d2q upon dt2 is equal to minus k into q minus q naught, है ना। देखिए अगर Q x हो गया ना, Q अगर x हो गया, मैं पहले बताया था, तो ये जो m होगा मास। लेकिन अगर Q थीटा हो गया, एंगुलर वेरिएबल, तो m क्या हो गया, I, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन इन जनरल फॉर Q इज इक्वल टू x। ओके, लेट अस सपोज दैट Q इज इक्वल टू x. Okay, otherwise we can solve this in terms of q also. So in that case we can substitute this q minus q naught, something like q dash. Okay, देखिए ये q जो है, इधर क्या है, q है, इधर q minus q naught है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो लेट अस टेक कि ये जो q minus q dash है, इस q naught है, इसको हम q dash ले लेते हैं। Now if you take differentiation both sides, so q naught is constant, so it will be just dq upon dt with respect to t, है ना। so it will be just equal to dq dash upon dt. so in terms of differentiation this q and q dash are same, है ना। if you take the second derivative, that is d2q dt2, and that will also be equal to d2q dash and dt2. so you can substitute this d2q dt2 as d2q dash, है ना। so it will be d2q dash upon dt2 is equal to minus kq dash. now it is looking like very simple equation, second order differential equation, dt2, और ये इसको इधर ले आया तो k upon m into q dash equal to 0. and you know if you write this k by m as omega square, then it will be just d2q dash. if you already know about this solution of differential equation, then you can understand easily. and again if you still don't know about this differential equations, how to solve differential equation, then again you can go to the playlist of my channel and you can see the topics mathematical physics, where I have discussed differential equation separately. and there is a separate playlist for differential equation. okay, so total mathematical physics we have completed actually. okay, and electricity, magnetism and mechanics का भी थोड़ा बहुत वीडियो अपलोड हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए d2q dash अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर q नॉट q dash इज इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यू कैन सी, है ना। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज जस्ट q dash इज इक्वल टू, इफ यू टेक टू कांस्टेंट एज c1 c2, देन c1 sin ओमेगा नॉट ओमेगा t, है ना, sin ओमेगा t plus c2 cos omega t. now q dash we can write as q minus q naught, so we can substitute again this, so it will be just
Q माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू C1 साइन ओमेगा टी प्लस C2 कॉस ओमेगा टी. नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन. जैसे मान लीजिए ये जो है, लेट मी हियर ड्रॉ दिस, तो इट इज जस्ट, देखिए तो C1 को हमें कांस्टेंट एक मान लेते हैं कि मान लीजिए कि C1 इज इक्वल टू हो गया, सपोज एक कांस्टेंट है जो है कॉस डेल्टा मान लीजिए, है ना. C1 मान लीजिए कि कॉस डेल्टा और डेल्टा इज ऑल्सो अनदर कांस्टेंट एंड C2 को मान लेते हैं हम साइन डेल्टा. तो देखिए C1 साइन ओमेगा टी क्या होगा, C1 साइन ओमेगा टी हो जाएगा कॉस डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी, है ना, प्लस हो जाएगा साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी. तो देखिए ये जो है ये एक्चुअली साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है. तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. तो हम लिख सकते हैं इधर, है ना, कि ये जो है और C1 प्लस C2, तो C1 C2 को अगर है यहाँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि दैट इज जस्ट कांस्टेंट भी होगा इधर, एक कांस्टेंट मान लेते हैं इसको, मान लीजिए कि कांस्टेंट जो है C1 इज इक्वल टू ए कॉस डेल्टा और ये जो है ए साइन डेल्टा मान लीजिए, है ना. तो और एक ए भी आएगा ना इधर, तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. तो ये हो जाएगा फाइनली ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना. Q माइनस क्यू नॉट इक्वल टू ए इज द एम्पलीट्यूड, यू नो, so Q will be just Q naught plus A sin omega t plus delta. So your delta is the initial phase, A is the amplitude, or Q naught is the initial position, you know, about which it is vibrating, है ना. Now what is A and what is delta we can find out from here, because if you divide these two you can see here that tan delta will be nothing but C2 upon C1, and if you square these two equation and if you add, then you will get C1 square plus C2 square. C1 square plus C2 square is nothing but A square. So you can write from here the A is nothing but square root of C1 square plus C2 square, है ना. So this is your term, what is delta and what is A in terms of C1 and C2. Okay, and this is the final expression. Now if you take that it is vibrating with respect to stable equilibrium position, and that stable equilibrium position is at Q is equal to Q naught if you take, है ना. So in that case Q naught and that is equal to 0. So in that case you will end up with just Q is equal to A sin omega t plus delta. Delta is here the initial phase. Okay, initial phase. So this is the final expression. Now if you want to use, if you are comfortable in X, then you can use just X also. If you are comfortable that you can write in this way, that the position of the particle executing simple harmonic motion, that is X, and that is nothing but A sin omega t plus delta, okay. Now what is the velocity? So if you differentiate this function, this X, and you can see if initial phase is 0, if your initial phase is 0, if initial phase is 0, that means delta is equal to 0, which give you just X is equal to simple A sin omega t, है ना, A sin omega t. Now you know this is, if you want to draw the graph between X versus t, then you will get this kind of graph. एंड अब देखिए ग्राफ का जो टाइम पीरियड कितना होगा, ये t जो होगा 2 पाई बाई ओमेगा, देखिए, है ना. और ओमेगा क्या था, ओमेगा था स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई एम हमने लिया था. तो t यहाँ से हम निकल सकते हैं कि t इक्वल टू होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k, है ना, क्योंकि t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. और ये टाइम पीरियड जो है, अब देखिए टाइम पीरियड जो यहाँ से यहाँ तक, ये जो है दिस इज एक्चुअली 2 पाई बाई ओमेगा. तो ये क्या होगा, पाई बाई ओमेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. सो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन एक्चुअली, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा ऑफ टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा.
Similarly, if you want to find out velocity from here, you have to just differentiate it. That if you have x is equal to a sin omega t, then what will be your velocity? That is dx upon dt, that is a omega cos omega t, है ना. So this is your velocity. So maximum velocity you can see here a omega, है ना. So Vmax, if you want to write, then Vmax is simply a omega. Now if you want to write it in terms of x, so you can write it, this is actually a omega into square root of 1 minus sin square omega t. Now let us put the value of sin omega t, because from here we can write that sin omega t is nothing but just x by a. Okay, so it will be just a omega and square root of 1 minus x square upon a square, है ना. So it will be just a omega into square root of, देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, एंड स्क्वायर अगर रूट के बाहर आ जाए तो ये ए के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी जस्ट, ये अगर बाहर आ गया ना तो ये ए हो जाएगा, रूट अगर यहीं लगाता है तो ये कट जाएगा. सो इट विल बी जस्ट ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. सो जो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिला, v इज इक्वल टू जस्ट ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड और एक एक्सप्रेशन भी मिला था जो है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और इससे हमको ये भी मिला कि वी मैक्स जो है वो है ओमेगा है. सो दिस इज योर जस्ट 10+2 लेवल कॉन्सेप्ट, यू नो अबाउट ऑल दिस थिंग. ओके, एंड दिस इज v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ यू कैन सी वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए, एंड व्हेन इट विल बी ओमेगा ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0. देखिए व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 यू विल गेट जस्ट v इज इक्वल टू ओमेगा ए, बट व्हेन एक्स इज इक्वल टू a, देखिए when x is equal to a, what you will get? You will get just v is equal to 0. So what it means, देखिए अगर एक पार्टिकल ऐसे SHM कर रहा है about this point x is equal to 0, इधर है प्लस है, that is एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इधर है माइनस है. तो अब देखिए अगर पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम पॉइंट में है, एट x is equal to 0 में है, तो इसका जो वेलोसिटी हो वो मैक्सिमम है. मतलब यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होते हैं, लेकिन ये एंड पॉइंट में देखिए प्लस ए और माइनस ए में क्या होगा, x is equal to प्लस ए हो या माइनस v is equal to 0 हो जाएगा. मतलब यहाँ पार्टिकल जो है रेस्ट में आ जाएगा, है ना. सो अकॉर्डिंगली इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो यहाँ 0 हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है यह मैक्सिमम होगा. हम देखेंगे ये भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और यहाँ क्या होगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, या 0 हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, क्योंकि वेलोसिटी अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली 0, तो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहेगा ना. तो हम देख सकते हैं वो भी. ठीक है, सो हम निकल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. और देखिए वेलोसिटी का जो ग्राफ अब चाहिए, वेलोसिटी जो है v वर्सेस t जो ग्राफ हो, ये कॉस का ग्राफ देखिए आप, तो at t equal to 0 it will be just omega a and it will be just something like this. लेकिन टाइम पीरियड सेम रहेगा ना, 2 पाई बाई ओमेगा ही रहेगा. टाइम पीरियड जो है 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब यहाँ से यहाँ का जो टाइम हो जाएगा ये सेम रहेगा. लेकिन ये जो है ये प्लस ओमेगा ए हो गया, और इधर जो है ये माइनस ओमेगा ए हो गया. ठीक है, सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. देखिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं ना तो वेरी इजी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के जो है ये हाफ एम वी स्क्वायर होते हैं, और v तो हमको पता ही है, हाफ m इंटू वी. व्हाट वाज v? v का दो एक्सप्रेशन था, एक था v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी. तो इफ यू सब्सटीट्यूट दिस देन यू विल गेट जस्ट हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. लेकिन अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ x निकालना चाहे तो ये हो जाएगा हाफ m, और v का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, देखिए ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. तो हाफ m इंटू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ x, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ t. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है. क्योंकि देखिए अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एक कम करते हैं हम इसको, एक हाफ यहाँ ले लेते हैं
और दैट विल बी 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी, यू कैन राइट, है ना, इन दिस वे। तो ये जो होता है देखिए 1/4 m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, एंड ये जो है 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी, ये होता है 1 + cos 2 ओमेगा टी। तो ये देखिए, देख लीजिए आप, ये cos 2 ओमेगा टी जो है ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया, जिसका फ्रीक्वेंसी है डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट था, और पोजीशन का एक्सप्रेशन क्या था, cos ओमेगा टी या sin ओमेगा टी, तो ये डबल हो गया, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर इंटू cos 2 ओमेगा टी। तो देखिए ये वाला जो टर्म है ये पीरियोडिक फंक्शन है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट प्लस पीरियोडिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करें तो वो भी ऐसे ही होगा, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है देखिए माइनस du/dx, है ना, और एफ इक्वल टू माइनस के एक्स ले लेते हैं हम सिंपल फॉर्म में। सो माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस du/dx, तो देखिए ये कट जाएगा, तो du जो हो जाएगा के एक्स dx हो जाएगा। तो u क्या होगा देखिए, अगर आपको इंटीग्रेशन करें इसको तो u हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2, सिंपल हाफ के एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज k? k वाज m ओमेगा स्क्वायर, वी हैव टेकन ना कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m, सो k विल बी m ओमेगा स्क्वायर जस्ट। So I am revising this thing quickly because this is your 10+2 level concept, okay? तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज जस्ट u, और u के अगर हम x t के फॉर्म में लिखना चाहे तो x क्या था, a sin ओमेगा t था। So if you just substitute here, that will be हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t हो जाएगा देखिए। और फिर भी सेम, ये साइन स्क्वायर ओमेगा t को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा t लिख सकते हैं हम, 2 sin स्क्वायर ओमेगा डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो पार्ट है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि u इज जस्ट 1/4 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी जो है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, तो फिर ये हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, जो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी। तो ये भी हो गया पीरियोडिक फंक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, ये भी पीरियोडिक फंक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। So please keep in mind that kinetic energy and potential energy of simple harmonic motion is also periodic with frequency double of the frequency of velocity and position or displacement. Okay. समटाइम्स ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज होगा ना, वो बेसिकली कॉस स्क्वायर का एवरेज है, क्योंकि देखिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर तो कांस्टेंट होते हैं, तो ये हो जाएगा एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एंड यू शुड नो दैट एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज जस्ट हाफ, सो इट विल बी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। ये भी आपको डिटेल्स में जानना है कि कैसे ये एवरेज निकलता है, तो हमने ये डिस्कस किया फूरियर सीरीज में, है ना। फूरियर सीरीज का जो फर्स्ट टॉपिक था वो था पीरियोडिक फंक्शन, and how to calculate the average value of any function I have discussed there also. So if you again want to know about details in this thing, then you can go to the playlist of mathematical physics where Fourier series is there, and that is also the syllabus of IIT JAM. So आपका IIT JAM का जो mathematical physics syllabus है वो भी खत्म हो जाएगा, और आप ये भी समझ सकते हैं कैसे हम ये निकालता है। Otherwise you can remember that in full period cos square and sin square का जो एवरेज होता है वो हाफ होते हैं, तो ये cos स्क्वायर का एवरेज अगर हाफ है तो ये हो जाएगा 1/4 ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। सिमिलरली देखिए यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी का हम एवरेज निकालता है तो वो हो जाएगा U एवरेज इज ऑल्सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर इंटू एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो एवरेज हो वो अगेन हाफ होगा, तो इट विल बी जस्ट 1/4 m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है वो होगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। क्लियर। नाउ व्हाट इज द टोटल एनर्जी। देखिए टोटल एनर्जी क्या होगा, सो टोटल एनर्जी जो होगा ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का था हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। तो अगर हम ऐड करें तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, so it will be just half m omega square square, and that is obviously constant, you can see here, है ना, this is constant. So now
अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं यू के एंड ई को, तो लेट मी टेक along y एक्सेस है ना, दिस इज जस्ट e k एंड u एंड along दिस इज x। तो देखिए e जो है कांस्टेंट है, देखिए e कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब ये हो जाएगा पैरेलल लाइन ऑफ x एक्सिस। नाउ व्हाट इज द u? u इज देखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज सिंपली अ पैराबोला है ना, u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप जो पैराबोला होते हैं वही होगा, देखिए ए वाला पैराबोला होगा। और व्हाट इट मीन्स, देखिए जब x बढ़ रहा है ना, देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। सिमिलरली व्हेन x इज डिक्रीजिंग हियर इन नेगेटिव, x इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, तब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होते होते ये मैक्सिमम जाएगा यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना ही था, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर हम x को इंक्रीज करते हैं तो एक टाइम क्या होगा, x इक्वल टू a हो जाएगा, देखिए प्लस a। सो x इक्वल टू प्लस a में क्या हो जाएगा, देखिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, जो एक्चुअली टोटल एनर्जी, सो ये टोटल एनर्जी को टच करेगा। ऐसे अगर ये माइनस a होगा तो इधर से टच करेगा टोटल एनर्जी को, मतलब ये जीरो था पहले, लेकिन ये बढ़ते 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 एक टाइम हो जाएगा e के बराबर, जब x इक्वल टू a। x इक्वल टू a का मतलब क्या होगा, देखिए ये एक्सट्रीम पोजीशन। सो एक्सट्रीम पोजीशन में मैं पहले ही बोला था कि ये काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, है ना। सिमिलरली देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आप देखिए, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, k इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जब x इक्वल टू a है, देखिए x इक्वल टू जब a हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब क्या है, इधर x इक्वल टू a में जीरो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, देखिए माइनस a भी जीरो है, प्लस a में भी जीरो होगा। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का भी देखिए x इक्वल टू जब जीरो है तो ये टर्म नहीं रहेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया, टोटल एनर्जी, मतलब x इक्वल टू जीरो में काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगा। फिर अगर x को हम इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करते करते एक टाइम ये माइनस a में इधर मिलेगा और इधर प्लस a में मिलेगा, लेकिन ये भी पैराबोला ही है, लेकिन ये इन्वर्टेड पैराबोला हो गया, है ना। तो देखिए हम ऐसे हम देख सकते हैं इसको, ये तीनों ग्राफ को एक साथ, तो आपको कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू जीरो में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, क्योंकि ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था। अगर x को हम इंक्रीज करते रहे, ये इंक्रीज होता जाएगा, कब तक, जब तक ना वो e हो जाए। तो जब तक ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब इंक्रीज हो रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, ये होना ही था, क्योंकि देखिए e प्लस e इक्वल जो होता है k प्लस u है ना। तो अगर u इंक्रीज है तो k डिक्रीज होगा, अगर k इंक्रीज है तो u डिक्रीज होगा। देखिए जब k इंक्रीज हो रहा है ना तब u डिक्रीज होगा, जब u देखिए जब k डिक्रीज हो रहा है ना तब u इंक्रीज होगा, होना ही था, क्योंकि टोटल जो एनर्जी है ये कांस्टेंट है। तो देखिए k डिक्रीज होते होते एक टाइम जीरो हो जाएगा, और u जीरो से इंक्रीज होते होते एक टाइम मैक्सिमम हो जाएगा। तो k हो रहा है मैक्सिमम टू जीरो और u हो रहा है जीरो टू मैक्सिमम, और सेम द ग्राफ विल बी रेप्लिका when it will be for negative x, that is the left side of the graph is the mirror image of the right side, you can say, just image of the right side, you can say. Okay, so this is how we can explain this thing, though these things are basically for your 10+2 level concept, है ना। ये सब 10+2 लेवल में ही था, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया। और पहला जो टॉपिक था रेस्टोरिंग फोर्स वाला जो टॉपिक था वो थोड़ा सा बीएससी एडवांस लेवल का था। तो आईआईटी जेईई का सिलेबस ही ऐसा है कि वो एडवांस 10+2 लेवल अर्थात जेईई एडवांस का जो सिलेबस है और बीएससी का जो बेसिक सिलेबस है, ये दोनों मिलाकर किया गया है। तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट अलग है, वो बीएससी का सिलेबस है, लेकिन बेसिकली जो ये वेव ऑप्टिक्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म होते हैं, ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स बेसिकली थर्मोडायनामिक्स भी ऐसा ही है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का बात अलग होता है। मॉडर्न फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत टॉपिक्स तो है 10+2 लेवल का, जैसे शुरू में जो टॉपिक्स होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब टॉपिक्स होते हैं। लेकिन अगर आप मोटा मोटा बात करते हैं आईआईटी जेईई का सिलेबस के ऊपर, तो मेरा मानना ये है कि आईआईटी जेईई का जो सिलेबस है वो बेसिकली एडवांस लेवल ऑफ हायर सेकेंडरी एंड द बेसिक लेवल ऑफ बीएससी, दैट इज द कॉम्बिनेशन, and that combination is very dangerous when it will
appear in the form of problem. Otherwise it is very easy, the syllabus is very easy, but the topics that have chosen in the syllabus of IIT JAM very wisely, and they can form a difficult type of problem, a lot of difficult type of problem from those topics. ओके, सो इस सिलेबस को आप हल्के में मत लेना कि हमारा तो ये सिलेबस जो है बीएससी सिलेबस से तो बहुत छोटा है। हाँ, छोटा तो है बहुत, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका जेई एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट और जो बीएससी लेवल का कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर होता है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस एंड वी विल डिस्कस प्रॉब्लम ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्लास ऑन दिस। ओके, एंड जैसे क्वेश्चन आईआईटी JAM में आते हैं ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।